A lovely good morning to you all. Students, today I am going to solve some questions of miscellaneous exercise on the chapter second. That is miscellaneous exercise related to chapter relations and functions. The first question is that the relation f is defined by fx is equal to x square when x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 3. Fx is equal to 3x when x is greater than or equal to 3 but less than or equal to 10. Okay. And another relation g is defined by gx is equal to x square when x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 2. 3x when x is greater than or equal to 2 but less than or equal to 10. And here in this question we have to show that f is a function and g is not a function. Students, you know very well, in the previous lecture I told you also that a relation in which every element of the first set A has distinct images in unique images in set B, then in this case we can say the given relation is a function. In a case if any element of the first set has two images, not unique images in another set B, then in this case we can say this is not a function. Okay, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन होगा तो उनके फर्स्ट सेट के जो इमेज एलिमेंट्स होंगे उनके कितने इमेजेज होंगे, यूनिक इमेज होंगे. अगर वो फंक्शन नहीं होगा तो यूनिक इमेज नहीं. ओके, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को. Solution first. Given that the relation f is defined by and another relation g is defined by this. Okay. Then what will be f0? 0 के लिए जब x 0 के इक्वल होगा तो उसके लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर. मीन्स f0 विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 0 से बड़े के if x is equal to 1 then 1 square. If x is equal to 2 then 2 square. If x is equal to 3 तो 3 के लिए आप देखिए जब 3 होगा तो फंक्शन a भी हो सकता है और जब 3 होगा तो फंक्शन a भी हो सकता है. तो आप पहले इसमें पुट करिए 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ओके, आप पता करें f4 जब x 3 से ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा. चलिए 3 पर ही पता कर लेंगे. 3 पता करेंगे तो क्या है, जब इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. f4 पे क्या होगा, 4 इंटू 3 12. f5 5 पे 15. f6 18. f7 what 21. f8 24. f9 27. f10 30. तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग ऐसे राइट करें, क्या पुट किए हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जो वैल्यूज आया है 0 1 4 9 9 12 15 18 21 24 27 30. 0 पुट किया है 0 आया, 1 पुट किया है 1, 2 पुट किए हैं 4, 3 पुट किए हैं 9, 4 पुट किए हैं 12,
5 पुट लिए हैं 15, 6 पुट करने पर 18, 7 पर 21, 8 पे 24 और 9 पे 27, 10 पे 30. Here we see that every element of the first set has unique images in another set. Then in this case we can say this relation f is a function. यहाँ पे पहले सेट के एलिमेंट्स का जो इमेजेस मिल रहा है, इमेज यूनिक मिल रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, इसलिए यह क्या है, फंक्शन है. ओके, आप चाहे तो इतना राइट करके कह सकते हैं, या कहाँ डर बना हुआ है, आप इधर तो पुट करेंगे 0 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. आप देख रहे हैं कि 3 पुट करेंगे इसमें, आप 3 ही पुट करेंगे इसमें, कहीं एक ही एलिमेंट का अलग अलग इमेज आ जाता तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं. तो आप सिंपल F3 इस फंक्शन के लिए पता कर सकते थे, F3 इस फंक्शन के लिए पता कर सकते थे, और अगर दोनों केस में इसका इमेज एक ही आता तो भी आप कह सकते थे कि ये क्या है, एक फंक्शन. आप इतना लिखने के बाद भी राइट कर सकते हैं. आप क्या राइट करेंगे, हियर every element has unique image. Therefore f is a function. f क्या है, फंक्शन है. ओके, सेकेंड पार्ट को आइए देखें. F0 सॉरी G0 जो यहाँ पे रिलेशन है वो दूसरा क्या है, G है. आप राइट करिए G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10. इसकी वैल्यू क्या होगा, G0 when x is equal to 0, then for x is equal to 0 the function is x square. Then we have to find G0. Then what will be G0? G0 will be equal to 0 square and 0 square will be equal to 0. G1 when x is 1, that is when any number is greater than 0, then for the but less than 2 the function the relation is x square. For this the value of relation gx is equal to x square. Then G1 x is equal to 1 के लिए क्या है, रिलेशन a है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 के लिए 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 के लिए 3 स्क्वायर मीन्स 9. 3 है यहाँ पे, आप देखें 3 के लिए नहीं है, किसके लिए है, 2 के लिए है. आप इसको हटाइए, 2 के लिए क्या हो गया, 2 तक ही है, 2 स्क्वायर के लिए हो गया. हाँ, 2 के लिए एक और दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ भी 2 के लिए फंक्शन अलग से डिफाइन किया गया है, तो ये 3x है, यानी 3 × x के जगह पे 2 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी फंक्शन क्या है, रिलेशन जो डिफाइन किया गया है 3x है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा. 4 पुट करेंगे 12, 5 पुट करेंगे 15, ऐसे 6 पुट करेंगे आपका 18, 7 21, 8 24, 9 27, 10 30. अब क्या ये रिलेशन भी फंक्शन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 0 1 4 6 12 15 18 21 24 27 30. 1 0 0 1 1 2 4 and 2 6 also. जब हम लोग एक G2 पता किए हैं
तो 2 के लिए फंक्शन ए भी डिफाइंड है, यहाँ पुट किए हैं तो 2 स्क्वायर 4 आया। 2 के लिए यहाँ सॉरी रिलेशन जो डिफाइन किया गया है 2 के लिए एक्स स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ 2 के लिए क्या है 3x है तो 3 × 2 6 आ गया है। यानी 2 के जो इमेजेज हैं वो क्या है 4 है और क्या है 6 है। 3 का क्या है 3 नहीं पुट किया क्या, हाँ 3 पुट कर लीजिए आप G3। 3 का क्या हो जाएगा 3 × 3 9। एक कोई एलिमेंट राइट कर लीजिए यहाँ पे 9। 4 के लिए 12, 5 के लिए 15, 6 के लिए 18, 7 के लिए 21, 8 के लिए 24, 9 के लिए 27, 10 के लिए 30। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट 2 का जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, और इमेज अगर यूनिक नहीं है तो वह रिलेशन फिर फंक्शन भी नहीं। ओके, आप लिखेंगे हियर images of 2 is 4 and 6 which are not unique, therefore it is not a function। तो ये क्या है फंक्शन नहीं। स्टूडेंट्स अगर मैं कहीं बोल दिया हूँ कि ये फंक्शन दे रखा है फंक्शन दे रखा है तो आप उसको फिलहाल रिलेशन ही मानेंगे। अगर वो लास्ट में फंक्शन हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो रिलेशन ही सार्थक रहेगा। जैसे ये आपका एक क्या है रिलेशन है, ये भी आपका क्या है एक रिलेशन है। बाद में हम लोग देखें कि यही रिलेशन क्या हो गया था फंक्शन हो गया था, लेकिन यह रिलेशन फंक्शन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो आप हमेशा लॉन्गली यूज करेंगे द गिवन रिलेशन इज समथिंग। ओके, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐसे एग्जाम में अगर आगे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं तो आप किसको कंसिडर करेंगे? 3 के लिए दोनों जगह रिलेशन डिफाइंड है, यहाँ पर 2 के लिए डिफाइंड है, तो 2 ही पे हम लोग को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं हो सकता है कि यूनिक इमेज न आए। तो यहाँ देख रहे हैं 3 के लिए दोनों में पुट कर रहे हैं, 3 के लिए यहाँ पुट करेंगे 9 नहीं आ रहा है, 3 के लिए यहाँ पुट करेंगे 3 3 9 नहीं आ रहा है, मतलब 3 का इमेज क्या हो जा रहा है यूनिक फंक्शन है। यहाँ पे 2 के लिए देख रहे हैं तो 2 स्क्वायर 4 आ जा रहा है, यहाँ 2 के लिए देख रहे हैं 6 आ जा रहा है, 2 का दोनों इमेज मिल जा रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ fx is equal to x square, then f1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1 is equal to what? Students, write down solution. Given function start, given function is what? Fx is equal to x square. To find this, we have to find f1.1 and f1 also. Okay, putting x is equal to 1.1, then what will be happen? It will be equal to square of 1.1. Okay, for f1 putting or put x is equal to 1, then what will be happen? It will be 1 square, it will be equal to 1.21 and it will be equal to 1. Then f1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1 is equal to, what is f1.1? 1.21. What is f1? 1. 1.1 minus 1, it will be equal to what? 0.21. 1.1 minus 1,
0.1 and 0.21 can be written as 21/100 for two places in decimal we can write upon 100, and for this 1/10, 10 yeah 100, and it will be equal to 21/10 is equal to 2.1. It will be value of f1.1 minus f1/1.1 minus 1 for the given function fx is equal to x square. Okay, next question number 3rd. Find domain of the function. Third, find domain of the function fx is equal to what? Fx is equal to x square plus 2x plus 1, x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12. स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले लेक्चर में कुछ बातें बताया था कि कैसे हम लोग डोमेन और रेंज पता करते हैं। तो कोई फंक्शन दे रखा है, रियल फंक्शन दे रखा है, तो इसका डोमेन जाहिर सी बात है कि रियल नंबर ही होगा। तो देखा था कि थोड़ा सा हम लोग किस फंक्शन के लिए सतर्क हो जाएंगे, जो फंक्शन रेशनल फंक्शन होगा, मतलब अपॉन में होगा, तो उस फंक्शन के लिए हम लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर उसका डिनोमिनेटर कहीं 0 हो गया तो फिर ये हो जाएगा किसी वैल्यू पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 मीन्स इनफाइनाइट, तो उसके लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। मतलब रेशनल फंक्शन में क्या देखेंगे, उसका डिनोमिनेटर किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है उसको हटा देंगे, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ओके, दूसरा स्क्वायर रूट देखें तो स्क्वायर रूट तो फिलहाल यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे हम किससे डर है, केवल डिनोमिनेटर से, नहीं तो इसका डोमेन क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। ओके, तो आप लिखेंगे गिवन फंक्शन इज, आप यहाँ राइट कर सकते हैं, गिवन फंक्शन इज दिस। ओके, ये फंक्शन डिफाइन होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा तब। तो x के कौन कौन से वैल्यूज को 0 बना देंगे उसको पता कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आप पढ़ें फैक्टराइजेशन, 12 से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को फैक्टराइज करेंगे, टू फैक्टर्स इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, चूज करेंगे, जिनका हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो 8 आ जाए और उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 आ जाए। ओके, then there will be 6 and 2, 6 2 ja 12 and 6 plus 2 8 also. So 6x minus 2x plus 12 is not equal to 0, and this implies that x into x minus 6 minus 2 into x minus 6 and not equal to 0, and here also x minus 6 common in both, then it will be x minus 6 into x minus 2 not equal to 0. This implies that x not equal to minus 6 or x not equal to x not equal to 6. When we transfer x minus 6 is equal to 0, 6 on RHS, then it will be plus
x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2 पे इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमको अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड होगा? नहीं होगा। मतलब ये x के हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा सिवाय 6 और 2 के, क्योंकि 6 और 2 पे इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका डोमेन R रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता था, लेकिन उसमें से 6 और 2 पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, therefore we can say domain of f will be equal to difference of set of real number to the set but containing the element 2 6। मतलब रियल नंबर के सेट में से 2 और 6 को हटा देंगे, उसके बाद किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा। ओके, तो वही उसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन defined by what fx is equal to अंडर रूट x माइनस 1। स्टूडेंट्स, ये भी फंक्शन, इस फंक्शन का भी डोमेन पता करने में हम लोग को सतर्क हो जाना पड़ेगा। क्यों? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के लिए क्या मैं आपको बताया था कि यह फंक्शन कब डिफाइन होगा? मतलब x के किस वैल्यू के लिए इस fx की वैल्यू रियल नंबर आएगी। तो अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो जाए तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। अच्छा, निगेटिव कब नहीं होगा? मतलब जो इसके अंदर क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा? 0 से बड़ी हो जाए। तो आप राइट कर लेंगे सोल्यूशन में, given that fx is equal to root x minus 1, since f will define only when f डिफाइन कब? जब स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 से बड़ी होगी तब। इक्वल पे अगर इक्वल टू 0 होता है तो स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उस पर भी डिफाइन होगा। तो आप कर सकते हैं f will define only when x minus 1 will greater or equal to 0। जब x minus 1 will be greater than or equal to 0, then in this case fx will be defined, otherwise it will be imaginary। Okay, this implies that x will be, when x will be greater than, x की वैल्यू आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 या 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू जब आप इसमें x की पुट करेंगे तो fx की कोई भी वैल्यू इमेजिनरी नहीं आएगा। ओके, जब कोई वैल्यू इमेजिनरी नहीं आएगा मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए जो 1 या 1 से बड़ा है ये फंक्शन रियल वैल्यू दे रहा है, यानी डिफाइन हो रहा है। therefore you can say domain of f will be equal to what? Close interval 1 to infinite। 1 इक्वल टू दे रहा है, x 1 के बराबर हो सकता है, इसलिए क्लोज इंटरवल। इन्फिनिटी पे हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए वहां पे ओपन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्या? रेंज कैसे पता करें? तो रेंज के लिए मैं आपको बताया था, क्या बताया था? इसको y के इक्वल मान लेंगे टू फाइंड रेंज
put fx is equal to y, then what will happen? Y will be equal to x minus 1. और एक बात बताया था, जैसे आपका क्वेश्चन था fx is equal to √9 माइनस एक्स स्क्वायर, कि कोई भी वैल्यू आएगा यहाँ से तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट से आएगा तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम लोग किस वैल्यू को कंसीडर करेंगे? केवल प्लस को, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस कंसीडर करोगे तो x के एक ही वैल्यू के लिए दो इमेज मिलने लगेंगे, और जब दो इमेज मिलने लगेंगे, जैसे आप सपोज करिए आप यहाँ पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 1 √9 की वैल्यू प्लस माइनस 3, यानी 10 के लिए इसके कितने इमेज हो गए? +3 माइनस 3, तो एक फंक्शन होगा? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव हमेशा मानते हैं जब तक कि इसके पहले निगेटिव दे न दिया गया। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव है, तो आप यहाँ राइट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन both sides, then what will happen? Y square is equal to x square minus 1. ओके, अब यहां से अगर हम लोग x स्क्वायर पता करें तो क्या हो जाएगा? 1 को उधर ट्रांसफर करिए, y स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे ये फंक्शन रेशनल है, नहीं यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, थोड़ा ध्यान दें, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बना देगा। 1 क्या है? पॉजिटिव है, ऐड करेंगे क्या है? पॉजिटिव, और इधर से आप स्क्वायर को इधर ट्रांसफर भी करते हैं तो पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट बनाएगा, तो इधर y के हर एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू रियल ही वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर रूट के अंदर जब निगेटिव साइन आता है तो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, मीन्स ए एक्स वाई के हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। रेशनल में तो है नहीं कि डिनोमिनेटर की बात करें, तो हम यहाँ राइट करेंगे क्लियरली x will be defined for all x belongs to real. This is second and this is first। ये कह रहा है कि x कोई भी रियल y आप पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा? x जो होगा वो डिफाइंड होगा, मतलब x रियल आएगा। ओके, कहीं से आप यहाँ भी देखेंगे x की कोई y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो x निगेटिव भी नहीं आएगा। ठीक है, तो निगेटिव आने का कोई फिलहाल कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो फिर भी y कुछ भी आप पुट करेंगे इसको पॉजिटिव आना ही है और x आपका पॉजिटिव मिलता है, लेकिन हम लोग किस वैल्यू का चयन नहीं करेंगे। इसमें तो निगेटिव पॉजिटिव सब है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? 0 से केवल बड़ा। तो आप दोनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देन व्हाट विल हैपन? फर्स्ट कह रहा है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, पूरा रियल नंबर, सॉरी सेकेंड कह रहा है पूरा रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। फर्स्ट क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 0। तो कौन सी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है? 0 टू इनफाइनाइट। तो आप यहाँ राइट कर लेंगे, देयरफॉर रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू व्हाट? 0 पे आप पहुँच जाएंगे, लेकिन इनफाइनाइट पे नहीं, तो इनफाइनाइट पे आप ओपन इंटरवल बना देंगे, तो ये आपका रेंज हो जाएगा। ओके, similarly you can solve remaining questions of this exercise. Remaining questions are homework for you all. Okay, if you have any doubt related to these questions, then you are free to ask. Okay, thank you very much.